वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की वीडियो होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। उससे पहले आप लोगों से यार हमने बोलना था कि हमने बैकअप चैनल भी बनाया है, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कोई भी सॉन्ग्स वगैरह, ट्रेलर्स वगैरह, एंटरटेनमेंट वाली जो चीजें, मतलब काफी सारे लोग यहाँ बोलते हैं जो न्यू ट्रेलर्स आते हैं तो या उसके बारे अक्सर में यहाँ पर बिल्कुल- ब्लॉक हो जाते हैं, गानों बिल्कुल। पे कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, तो हम वहां पर बिल्कुल। करते हैं। तो आप वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की वीडियो एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसा कि पता है, इंडियंस हर जगह पर बहुत ही ज्यादा फेमस और मतलब इन्फ्लुएंस इंडियंस का बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इस पे कोई शक तो नहीं। आज हम देखेंगे, वीडियो का जो टाइटल है वो है अमेरिकन एनालिस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ इंडियंस आर मोर सक्सेसफुल देन चाइनीज। मतलब अमेरिका के जो एनालिस्ट है, मतलब जो उधर के थिंक टैंक्स होते हैं, मतलब जो मीडिया में आकर बोलते हैं कुछ भी, जो उसके बारे में थिंक टैंक एनालिस्ट जो होते हैं, हाँ, नजरिया जो रखते हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडियंस मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्यों चाइनीज से भी ज्यादा सक्सेसफुल है, क्या रीजन है इसका। तो बिना किसी देरी के पहले वीडियो देखेंगे और देखेंगे इन्होंने क्या बोला है, उसी के बाद सही से पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। China is, you get 6 Indians around the room. It's like a Greek dinner. Six Indians, 8 ideas. You sit around a round table in China, 6 Chinese, 1 idea. And it's मतलब the 6 person Indian, waiting 6 for them to ideas. speak. And you often can't tell exactly what they've said. That's the sort of, China is learning to deal with disharmony, discourse, disunion. India is totally used to that. And I think ultimately that will be a strength for India. And if China figures it out, they could be extraordinarily powerful. But I think they're starting to manage conflict within their own society in a more open way, and that's going to be a rocky road at times. Observation? I think so. India is the only country in the world that the United States runs a services trade deficit with. In other words, we have all kinds of trade deficits with countries that manufacture things that we buy. But only one country in the world produces services that we buy, which is all on the software or on the call center kind of back office services. That's the bulk. Only India country On the one hand. On the other hand, if you count the number of Indians who come to the United States to run countries as something that adds to our side of the ledger, essentially services created here, populated by Indians, it makes up for that, and then some. So I tend to view it as an enormous contribution to America that we're not quite getting from the Chinese. Enormous number of STEM-oriented students come from China. The impulse is for them China to se go bhi back aate for a hain number of log. reasons, including that many of them are children of Chinese communist government officials. And for many Officials reasons, ke they bete have to go hote back hain. in both Children places unke. because they want access to higher education in the United States. And we should want that. This is another big part of American soft power, is the fact that we're essentially educating the best and the brightest in those two places. On the Chinese side, they're going back, and hopefully they're changing parts of China in a way that works better for us, not just politically, but economically. In India, many of them are staying here, but that still builds a bridge. Many of my Indian friends have kids or grandkids here running companies. They often go back. They often come and visit. It's quite fluid. Yeah, just on that same point, there is definitely a distinct difference between the diasporas and what they're doing. And Indian Americans, I guess, I don't know what the number is now, 2.8 million are here. And you will see them as Indian leaders अभी तो ज्यादा in होंगे और U.S. society. And look at business, look at Silicon Valley, और look at the सबसे ज्यादा entertainment wealthiest industry, भी look Indian at है. the academy, look at politics, Governor Jindal and the governor of South Carolina. So, and that kind of systematic achievement is playing a role in relations as well, because those people are still relation में बाकी enthusiasts in role the दिखाती U.S.-India है. relation, and it's a tie that is moving back and forth in a way that I'm not sure is exactly the same with the Chinese-American population. इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। इसमें इसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। पहली बात ये कि इसने बोला कि अगर एक रूम में 6 इंडियन है, 8 उनके पास आइडिया तो होंगे। उनके पास 8 डिफरेंट आइडियाज होंगे। मतलब वो इतने क्रिएटिव होते हैं, उनके पास 8 डिफरेंट आइडिया होंगे। और अगर 6 चाइनीज है, उनके पास एक आइडिया होगा, सबके पास एक ही आइडिया, मतलब वही एक मतलब आइडिया उनके पास होगा। बिल्कुल। तो इससे मतलब वो पता लगता है कि इंडियन ज्यादा मतलब स्मार्ट है, उनके पास ज्यादा आइडियाज होते हैं। वो इसीलिए
और अमेरिका की कितनी कंपनीज इंडियन यार मैं एक बात बताऊं, जो एक आइडिया होता है ना, जिस तरह हम इंडिया के कहते हैं जुगाड़ बहुत है, जुगाड़। मतलब जहन में आइडिया बहुत होते हैं इंडियंस के पास। इस लिहाज से देखा जाए जुगाड़ नहीं, मतलब अपनी सेंस से अपने मतलब वो बहुत कमाल का उनका दिमाग बहुत तेज होता है। इंडिया में भी इतने लोग जुगाड़ करके इन्वेंशन करते हैं, क्यों करते हैं? एक आइडिया बहुत होता है। तो उसकी ही अमेरिकन काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे इंडिया एक वाहिद ऐसा कंट्री है, सिर्फ ओनली इंडिया जिनकी सर्विसेज को हम बाय करते हैं। मतलब ऐसे अमेरिका की सर्विसेज बाय की जाती हैं, कहते हैं हम इंडिया की सर्विसेज बाय करते हैं। और उसने ये भी बोला देखो इसके रिलेशनशिप हर एक के साथ बहुत अच्छे होते हैं। और एक बात माननी पड़ेगी यार, इंडियन जितने भी बाहर की कंट्रीज में आप देख लो, हर जगह आपको सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल उसकी मेन वजह कितने कमाल का यार, मतलब उनका कल उस दिन कमेंट में बोल रहे थे ना, कमेंट में कि इंडियन अमेरिकन से भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मैं बोलने लगा था, वो मतलब वो इंग्लिश है इतनी कमाल की, वो मतलब एक वो एक्सेंट बिल्कुल उसी प्रकार के बोलते हैं, उनको समझ नहीं आती। मैं यही बोलने लगा था क्योंकि चाइनीज बंदा वो नहीं कर सकता। गाइस आप लोगों को पता है चाइनीज बंदा वो नहीं कर सकता उस तरह से। मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता मैं चाइनीज स्मार्ट नहीं होते हैं, लेकिन चाइनीज बंदा वो उनकी चीज में बहने में उसको टाइम लगता है, उन्हीं के माहौल में ढलने में उसको टाइम लगता है, लेकिन इंडियन वो पहले दिन ही कर लेता है। तो और उस लिहाज से देखा जाए इंडियन जो है ना स्टार्टअप्स, मतलब जो कहता है चाइना के ऑफिशियल मतलब कम्युनिस्ट के जो मतलब मेंबर्स हैं उनके बेटे शेटे आके आकर करते। मैं एक और बात ये भी बोलने लगा हूँ कि यार एक इंडियन जितने भी है ना, जिस जगह पे न्यू मतलब जगह पे स्टार्टअप्स करते हैं, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। इंडियन रिस्क मतलब ये है कि वो नई चीजें करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, ताकि मतलब जाके आगे वो उनको काम है और कामयाब भी होते हैं। अभी तुम देख लो, मतलब न्यू चीजें वो मतलब वो जो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कुछ न्यू ट्राई करोगे तभी तो आप हिट होगे, नहीं तो नहीं होता। आप इंडिया में स्टार्टअप के मामले में देख लो, यंग जनरेशन न्यू चीजें ये वाले थिंक टैंक बोल रहे थे कि यही चीजें मतलब इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को भी अच्छी करती है। और ये बाकी चीज है यार, इंडिया आज के टाइम में मैं कहता हूँ अमेरिका को ज्यादा जरूरत है। नहीं भाई, अमेरिका को इंडिया की ज्यादा जरूरत है, ना कि इंडिया को अमेरिका। कोई शक नहीं है, क्योंकि देखो वो जहाँ इधर से इंडिया से सबसे ज्यादा इंजीनियर्स तो इंडिया से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और मजे की बात, आजकल इंडियन बाहर से ज्यादा अपने कंट्री में आ रहे हैं, वो बाहर से नॉलेज लेकर अपने कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो और अच्छी बात है। और इंडियन कंपनीज भी बहुत अच्छा उनको जो है ना जॉब्स के मतलब सैलरी दे रही है, बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखना। तो यार बाय।